اسرائیل کا دشمن ایران کا یار، قیدی نمبر 804، اسرائیل کا دشمن ایران کا یار، قیدی نمبر 804، کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان، عمران تیرے جانثار، بے شمار بے شمار۔ ہم یہاں پر ایگزیکٹلی ٹائم پر آ گئے تھے، اور ہم نے جب یہاں سے ہم جو ہے گیٹ پر پہنچے تو انہوں نے ہماری گاڑیاں روک دی، ہمیں آگے جانے نہیں دیا، تو ہم نے بھرپور مذمت کی۔ ہم نے ان سے کہا کہ یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے اور ہمیں آگے جانے دیا جائے، لیکن یہاں پر جو ان کی نفری کھڑی تھی انہوں نے ہمیں آگے نہیں جانے دیا۔ ظاہر بات ہے چونکہ فیمیل کی اس میں تھی تو یہاں پر فیمیل پولیس بھی تھی، ان کی بھی نفری موجود تھی، تو وہ آگے جانے نہیں دے رہے تھے۔ ہم کافی مزاحمت کرنے کے بعد جس ٹائم جو ہے روڈ بلاک ہونا شروع ہوئی تو انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ روڈ بلاک ہو رہی ہے، عوام جو ہے وہ تکلیف میں ہے تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ تو چونکہ پی ٹی آئی جو ہے اور عمران خان جو ہیں وہ ایک عوامی پارٹی ہے، وہ پارٹی ہے کہ جس کو قوم نے ووٹ دے کے بھیجا ہے، جس نے عوام کو جس کو ہمیشہ عوام نے سپورٹ کیا ہے، اور چاہے وہ 8 فروری ہو کوئی بھی ہو، اس میں آپ دیکھ لیں کہ عوام ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹر رہی ہے، تو ان کی وجہ سے ہم یہاں سے تھوڑا سا سائٹ پہ آ گئے۔ دیکھیں بات یہ کوشچن ایک بڑا چھوٹا سا ہے، وہ یہ کہ جب ہمارا حق ہے، جب ہمیں قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے، جب آئین ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے، تو پھر کس بنیاد پر یہ ہمیں یہاں پر روکتے ہیں؟ ہر جمعرات کو، ہر منگل کو، جمعرات کو عمران خان کی پارٹی کے لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں، لیڈرشپ ملنے کے لیے آتی ہے، ورکرز ملنے کے لیے آتے ہیں، ان کو نہیں ملنے دیا جاتا۔ منگل والے دن جب ان کی بہنوں کی ملاقات ہوتی ہے، جب ان کے وکلاء کی ملاقات ہوتی ہے، اس دن بھی ان کو ملنے نہیں دیا جاتا۔ عمران خان صاحب کو پچھلے 5 مہینے سے عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی کیا کنڈیشن ہے۔ ہمیں باہر پتہ چلتا ہے، مختلف تیسرے بندے کی بنیاد پہ ہمیں آ کے میسیجز ملتے ہیں اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ جو ہے وہ 85% ضائع ہو چکی ہے، اور ان کا وہ اثر جو ہے وہ ان کی دوسری آنکھ پر بھی جا رہا ہے۔ لیکن ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ بنا فیملی کو انفارم کیے، بنا وکلاء کو انفارم کیے، بنا پارٹی کو انفارم کیے، عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کسی بھی ان کے ذاتی معالجین سے نہیں ملنے دیا جاتا، ان کی کوئی رائے نہیں لی جاتی، اور عمران خان صاحب کو پمز لے جایا جاتا ہے بنا بتائے۔ اور پمز میں وہ ہسپتال کے جہاں پر ہم سب کو پتہ ہے کہ ریٹنا ڈٹیچمنٹ کا کوئی بھی جو ہے وہ وہاں پر سرجری یا پروسیجر کرنے والا سسٹم ہی جو ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے، وہاں پر مشینری موجود نہیں ہے، وہاں پر سرجن موجود نہیں ہے، وہاں پر فزیشین موجود نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود جو ہے وہاں پر بار بار 3 بار ان کو وہاں لے جایا گیا، ان کو کوئی انجیکشن لگا دیا جاتا ہے وہاں پر، اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر ندیم قریشی ہیں کہ جو ہیں ان کی اس کو دیکھ رہے ہیں، اور عارف صاحب ہیں، اور اسی طرح سے ٹیمز جو ہیں وہ یہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے جی کوئی ٹیمز آتی ہیں آ کے معائنہ کر کے چلی جاتی ہیں، لیکن نہ اس چیز کا فیملی کو علم ہے، نہ اس چیز کا پارٹی کو علم ہے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری چیز، عمران خان کا قصور کیا ہے کہ جس کی وجہ سے عمران خان کو جو ہے آپ نے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے اتنے عرصے سے؟ وہ قصور صرف یہ ہے کہ عمران خان اس قوم کی بات کرتے ہیں، عمران خان قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں، اور عمران خان یہ بات کرتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے، جس کی جو ڈومین ہے، اس کو اس ڈومین میں کام کرنا چاہیے، اس کو اس کا حق دینا چاہیے، اور عوام جس کا منتخب شدہ نمائندے جو ہیں، جو اس کا مینڈیٹ ہے عوام کا، جس طرح عوام کا وہ 8 فروری کو چوری کیا گیا، وہ مینڈیٹ جو ہے وہ واپس کیا جائے۔ عمران خان جب بات کرتے ہیں وہ اپنی بات نہیں کرتے اپنی رہائی کی یا کسی اور چیز کی، عمران خان بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے حقوق پورے کریں اور آپ جو انصاف ہے وہ دیں۔ آج عمران خان پر عدالتوں کی طرف سے انصاف بند ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، عدالتیں بند ہو چکی ہیں بالکل۔ آپ کا کوئی کیس عمران خان کا نہیں لگ رہا، اور اگر لگ بھی رہا ہے تو اس پر ڈیٹ دی جا رہی ہے۔ تو دیکھیں جب تک عمران خان کے ساتھ اس طرح کا سلوک یہ کرتے رہیں گے، یہ یاد رکھیں کہ آپ کے ملک میں آپ یہ کہیں کہ امن آئے گا یا یہ حالات بہتر ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ کہیں کہ مزاحمت ختم ہو جائے گی، وہ نہیں ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف مزاحمت کرتی رہے گی۔ عمران خان جو ہے وہ ہمارے لیڈر ہیں۔ دیکھیں عمران خان کے لیے ان کی فیملی پریشان ہے، وہ ان کا خون کا رشتہ ہے، وہ ایک ماں کے پیٹ سے جنے ہوئے بچے ہیں سارے، ٹھیک ہے، ایک ماں کی اولاد ہیں۔
तो कैसे ये हो सकता है कि वो उनके लिए फिक्रमंद ना हो, उनके लिए परेशान ना हो। तो डेफिनेटली इमरान खान के लिए उनकी फैमिली भी परेशान है और इसी तरह से लीडरशिप भी अपने तय कोशिश कर रही है। देखें, अगर इख्तलाफात कहीं हो जाते हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता, मैंने पहले भी कहा है कि ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि हम एक दूसरा लड़ना शुरू कर दें, वो नो। उसका मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे को समझा सकें कि ये तरीका भी है, ये तरीका भी है, दोनों तरीकों में से जो हम अडॉप्ट करना चाहें वो हम कर सकते हैं। मैडम मैं लेती हूँ, फैसल भाई बहुत देर से पूछ रहे हैं। जो फकत सोशल मीडिया तक महदूद होती जा रही है और डिजिटल मीडिया के जो जिम्मेदार हैं उनकी जानिब से जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं या अवामी इशूज़ हैं उन पे बात नहीं की जाती, सिर्फ मजलूमियत का आर्ट खेला जाता है। इस पे क्या कहें? फैसल भाई एक बात याद रखिएगा, एक तो बात ये कि सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक कैसे रह गई है। आपको यहाँ पे मंगल को आप नहीं देखते, जो आपको जो है यहाँ पे ग्राउंड पे लोग नजर आते हैं, ये जो लोग पकड़े जाते हैं बार बार, जिनको उठा लिया जाता है, जिनको अगवा कर लिया जाता है, जिनको जेलों में डाल दिया जाता है, ये कोई घरों से ही सिर्फ उठाए जाते हैं क्या? ड्राइंग रूम में बैठे उठाए जाते हैं या डिजिटल मीडिया पे खेलते उठाए जाते हैं? माजरत के साथ वो ग्राउंड से उठाए जाते हैं। वो क्योंकि पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए वो उठाए जाते हैं। तो बात ये है कि पीटीआई कल भी ग्राउंड पे थी, आज भी ग्राउंड पे है और आगे आपको बड़े भरपूर अंदाज में पीटीआई ग्राउंड पे नजर आएगी। तो इमरान खान की रिहाई के लिए करते ये बताइएगा, पीटीआई केपीके में काफ़ी अरसे से ग्राउंड पे है, वहाँ पर माली बेज़ाब्तियाँ हों, फलाई मनसूबों में कमियाँ हों या अमन अमान की बात, क्या आप नहीं समझती कि उसके ऊपर तनकीद भी होनी चाहिए? और देखें, मैं बड़ी इस चीज़ पे वाज़ेह हूँ कि अगर कुछ ऐसा है तो तनकीद ज़रूर करें, मगर तनकीद बराए तनकीद ना करें, तनकीद बराए इस्लाह करें। दैट्स इट। हम हमेशा उसको बड़ा पॉजिटिव लेते हैं, हमारा लीडर बड़ा तनकीद को पॉजिटिव लेता है, तो हम भी उसको बहुत पॉजिटिव लेते हैं। आप 100 बार सवाल करें, हम 100 बार उसका जवाब देंगे। कहीं देखें, नहीं देखें, केपी के हालात बहुत बदल चुके हैं। अगर केपी के हालात ना बदले होते तो बार बार वो इमरान खान को वोट ना करते, बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इसमें ना आती, हुकूमत में ना आती। डॉक्टर नदीम कुरैशी वन ऑफ द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान के नंबर 1 सर्जन है रिटेना के हवाले से, तो आप उनसे भी सेटिस्फाइड हैं? देखें, बात यह है, हम कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं जब हमारी उनसे कोई बातचीत ही नहीं हो रही है, ना बहनों की हो रही है, ना पार्टी की हो रही है, ना वकला की हो रही है। किसी को पता नहीं है कि वो क्या इलाज करें। वो तो फ़ोन बंद करके बैठे हुए हैं जिस दिन से जो है वो यहाँ से मुआयना करके गए या पिम्स में उन्होंने जो इलाज किया है या जो भी किया है खान के साथ। देखें, अगर वो इतने ही जो हैं वो हीरो हैं हमारे मुल्क के, इतने बड़े वो फिजिशियन हैं, इतने बड़े वो सर्जन हैं, इतने बड़े वो डॉक्टर हैं, तो फिर उनको बाहर आकर उनको प्रॉपर्ली मीडिया पे स्टेटमेंट देनी चाहिए, उनको पूरा ब्रीफ करना चाहिए, उनको इमरान खान की फैमिली को ब्रीफ करना चाहिए, पार्टी को ब्रीफ करना चाहिए, वकला को ब्रीफ करना चाहिए, उनके डॉक्टर्स को ब्रीफ करना चाहिए कि इमरान खान की कंडीशन क्या है। उनका नाम तो मैडम उन्होंने दिया था, अलीमा खान ने दिया था ना। देखें, बिल्कुल नो, कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, बात ये थी कि ये जो नाम है इनका, आपको पहले भी अलीमा आपा क्लियर कर चुकी हैं कि ये नाम जो हैं उन्होंने कहा था कि हमें, जब इन्होंने अपने डॉक्टर्स के नाम दिए, उन्होंने कहा हमें मजीद नाम चाहिए, ये नाम हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो सारा आपा आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हुई हैं कि नाम हमारी तरफ से नहीं था। मैडम ये बताइएगा, इमरान खान जेल में है और इस वक्त जो मौजूदा क़यादत है उनके ऊपर भी तनकीद होती है। एक तो वो धड़ों को संभाल नहीं सकते और जो पार्टी फैसले करती है उसमें भी भाम रहते हैं। इस पे आप क्या? देखें भाई, एक बात याद रखिएगा, एक जो फैमिली होती है ना, फैमिली में भी बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं, ठीक है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि फैमिली जो है वो एक दूसरे के टुकड़े टुकड़े करके तो साइड पे हो जाती है। ठीक है, वो इन इख्तलाफात को बैठ कर सॉर्ट आउट करती है। और बात यह है कि हर एक का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खूबसूरती क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खूबसूरती ये है कि वो अपने लीडर पर भी तनकीद करते हैं, वो अपनी लीडरशिप पर भी तनकीद करते हैं, वो अपने वर्कर पर भी तनकीद करते हैं। तो तनकीद जो है वो किसी भी सियासी पार्टी का हुस्न है और मेरे ख्याल में बिल्कुल तनकीद होनी चाहिए। अगर कहीं कोई जो है वो लूप होल्स हैं तो वो लूप होल्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं, वो लूप होल्स जो हैं वो फिल हो जाते हैं जब आप आपस में बैठकर बात करते हैं। आप रावलपिंडी डिवीजन को अलीमा खान के साथ साथ होती हैं। अलीमा खान ने मंगल को कॉल दिए 10,000 लोग अडियाला जेल आए, यहाँ बैठे हैं, और बल्कि उन्होंने गिला भी किया कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, जो लोग नहीं आ सकते, नहीं बोझ उठा सकते, वो घरों पे बैठ जाएं। तो मंगल को क्या प्लान है? ज़ाहिर है पीडी डिवीज़न की सरबराही तो ज़ाहिर आप ही कर रही है, तो किस तरह लोगों को यहाँ लाएंगे और क्या
प्लान है? देखिए अच्छा, एक साथ तो में ये ये भी है कि 9 तारीख को पिंडी में जलसे का भी ऐलान किया है, उसके ऐलान से देखें जलसे से वैसे आपको काफी खतरा लग रहा लगता है। तो बात ये है कि डार भाई आपने जो क्वेश्चन किया है, देखें पिंडी डिवीजन को ये सब लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस वक्त यहाँ खड़े। इस वक्त पोठोहार के सदर भी मौजूद है, हमारी यूथ के सदर मौजूद हैं, हमारे कैंट के सदर मौजूद हैं, ये सब लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। तो बात ये है कि जो अलीमा आपा ने बात कही है, शायद आप लोग उनकी बात को फिर आप लोगों ने जो है नहीं सुना और नहीं समझा। आपा ने ये नहीं कहा कि लोग आएंगे मंगल को, आपा ने कहा कि ओहदादारान आएंगे। ओहदादारान कौन होते हैं? ओहदादारान वो होते हैं जिनके पास एक नोटिफिकेशन होता है जिसमें लिखा होता है कि ये प्रेसिडेंट है, ये जनरल सेक्रेटरी है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, फलां फलां है, जिनके पास डेजिग्नेशंस होते हैं, वो चाहे यूसी के हों, चाहे आपके डिस्ट्रिक्ट के हों, चाहे वो आपके रीजनल हों, चाहे वो आपके प्रोविंशियल हों, जो भी हों, उन ओहदेदारान की बात की गई है और सिर्फ ओहदेदारान की बात की गई है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि तमाम लोग जो हैं वो इसकी तैयारी कर रहे होंगे और इंशाल्लाह ताला वो लोग आएंगे, यहाँ पर बैठेंगे। देखिए इंशाल्लाह और जलसे की कहा गया था नहीं, 3 दफा अलीमा खान ने खुद कॉल मैं आपको बता देती नहीं हूँ। आए लोग। नहीं डार भाई देखें, बात ये है कि जब आप लोग ये बात करते हैं ना, अलीमा आपा ने कहा है कि मैंने पहली कॉल दी है ओहदेदारान को, पीटीआई को, ठीक है। देखें पब्लिक कॉल में और पीटीआई की कॉल में फ़र्क है, ओके। पब्लिक कॉल जब आप देते हैं तो पब्लिक आती है, इस बार ओहदेदारान की कॉल है और ओहदेदारान को आना पड़ेगा और आना चाहिए, ये बड़ा क्लियर है क्योंकि ये इमरान खान के लिए है। अगर हम चाहते हैं कि इमरान खान का इलाज हो, अगर हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई हो, तो फिर सबको यहाँ पर आना होगा और सबको जो है मुजाहमत करनी पड़ेगी, प्रेशर बिल्डअप करेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। हम इस बार सुन लीजिएगा फैसल भाई, बड़े मजे की बात है कि पहले हम 2-3 नाके क्रॉस करके आते थे, इस दफा लगता है कि कोई 50 या 100 नाके क्रॉस करके आएंगे, तो इंशाल्लाह पहुंचेंगे यहाँ पर और भरपूर मुजाहमत करेंगे इंशाल्लाह। और पिंडी का जलसा जहाँ तक आपने कहा, वो बिल्कुल कल जो है वो सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो उन्होंने वो किया और आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उसमें वो फैसला हो जाएगा। देखें हमें इजाज़त इनको देनी पड़ेगी NOC हर सूरत में, क्योंकि हमारा हक है। हम कोई आप जब अगर जो है जमात इस्लामी को दे सकते हैं, पीपल्स पार्टी को दे सकते हैं, PMLN को दे सकते हैं, तो आप PTI को भी दे सकते हैं। PTI का ये बुनियादी हक है। लेकिन ये क्लियर कर दें कि आप पिंडी में है या पिंडी भटिया में है? नहीं क्यों पिंडी भटिया में है भाई, पिंडी होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह पिंडी में होगा। ये याद रखें, पिंडी जो है ना, पिंडी इसरार भाई, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि आप लोग जो है वो ये समझ रहे हैं कि शायद रावलपिंडी जो है वो अब डरा हुआ है या वो निकलेगा नहीं, रावलपिंडी 28 सितंबर को भी निकला था, रावलपिंडी 6 अक्टूबर को और 4 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक भी निकला था, रावलपिंडी आपका 26 नवंबर को भी निकला था। तो ये याद रखिएगा कि इंशाल्लाह रावलपिंडी निकलेगा और भरपूर अंदाज में निकलेगा। इस्राईल का दुश्मन ईरान का यार, कैदी नंबर 804, इस्राईल का दुश्मन ईरान का यार, कैदी नंबर 804, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो, खान तेरी जित इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, जब सब्ज लाल लहराएगा तो होश ठिकाने आएगा, जब सब्ज लाल लहराएगा तो होश ठिकाने आएगा, जब खान बाहर आएगा तो पार्लियामेंट में जाएगा, जब पार्लियामेंट में जाएगा, जोश में लटकाएगा, चौक में लटकाएगा तो पता जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।